Good morning, my dear beautiful students. My name is Vibhash Tiwari. I am a teacher at Vimla Devi Public School, Siliari. And for your CG Board Class 10th Social Science, we are studying your Lesson 4 Mineral Resources and Industrialization. Today, the date is 11th of November 2021, Thursday, and it is the second part of this lesson. Please go through and revise your first part before starting the second part. Day before yesterday, in the first part, we have completed water, minerals. I am going to scroll down very slowly. You can read, and after completion of the reading till the point, you can start your second part. We have completed in the first part water, minerals. What do minerals belong to? Who do minerals belong to? Who do minerals belong to? And mineral policies. Please open in your book page number 39. Page number 39. And as you know the methodology of this reading, first open your book ready with pen and pencil. Read with me. Whenever you have any difficulty, underline the words. You will get the Hindi interpretation of that paragraph and the line. Still you have any problem, we will discuss in the classroom. The advantage is that in this way, before coming to the classroom, you will be familiar with the language and the context of the subject and the lesson. Now I hope you are ready. Study has been done. You have revised the first part. Now here page number 39. We are going to start. Now as you know, economic liberalization began in 1991. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण. भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई. The government announced a new mining policy in 1993 under which the mining of minerals reserved for the public sector enterprises was thrown open to the private sector. क्या हुआ 1993 या 1993 में सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की. इसमें कहा गया कि सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिज को भी अब निजी क्षेत्रों को देगी. The government's stand was that it did not have adequate capital to invest in mining, nor did it have the required technical expertise. सरकार का कहना था कि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह पर्याप्त मात्रा में निवेश कर पाए और न ही उसके पास इस काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है. As a result, the mining sector in the country was stagnant and could not take advantage of the growing demand for minerals in the international market. इस कारण से देश खनिज उत्पादन में पिछड़ रहा है और खनिज की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग का लाभ नहीं उठा पा रहा है. Hence, the government decided to open up the mining sector to private and foreign companies. इस वजह से सरकार ने निजी व विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया. The mining acts were amended in 1994, 1999 and 2008 to allow private and foreign companies to invest in mining in India. 1994 1994, 1999 1999 और 2008 में खनिज कानूनों में संशोधन किए गए ताकि निजी निवेशक और विदेशी कंपनियां आसानी से भारतीय खनन उद्योग में निवेश करें. However, concern about the impact of privatization
of mining in the country has been growing over the past 20 years. खनन के निजीकरण के कई प्रभाव पिछले 20 वर्षों में देखे गए हैं. First, the share of mining in India's GDP, gross domestic product, declined from 3% in 2000 to 2.3% in 2004, जिसका प्रभाव चिंताजनक है. जैसे कि मैंने कहा कि खनन के निजीकरण के कई प्रभाव पिछले 20 वर्षों में देखे गए हैं, जिसका प्रभाव चिंताजनक है. भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में खनन का हिस्सा 2000 यानी 2000 में 3% था, जो कि 2014 यानी 2014 में घटकर 2.3 रह गया. Employment and wages in mining have remained stagnant in these 14 years. इसमें जितने लोगों को रोजगार मिला वह 14 वर्षों में स्थिर रहा, यानी कि न आय बढ़ी और न ही रोजगार. On the other hand, the production has increased. दूसरी ओर यह देखा गया कि खनन द्वारा उत्पादन बढ़ा है. However, the government's income from mining has not increased proportionately. यानी मगर इससे राज्य को आय कम मिल रहा है. The main reason is the low royalty levied for the mining contract. इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि निजी कंपनियों को बहुत कम शुल्क में उत्खनन के ठेके दिए गए. The third impact is the destruction of environment. तीसरी समस्या यह रही कि निजी कंपनियां खनन के बाद खदानों को बिना किसी भरपाई के छोड़ देती है. Once a mine is exhausted, mining companies are supposed to carry out reclamation work, but they seldom do so. जैसे आपको मैंने कहा कि निजी कंपनियां खनन के बाद खदानों को किसी भरपाई के छोड़ देती है और India has hundreds of abandoned mines that tell the story of the destruction of the environment. कहा जाता है कि भारत में सैकड़ों खदानें हैं जो अभी बंद है और पर्यावरण के विनाश की कहानी को बयां कर रही है. How can we conserve the environment while carrying out mining activities? अब खनन के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो? How can private companies which are driven by the profit motive and are not interested in protecting the environment be made to invest in conservation? These are issues that are still being debated. निजी कंपनियां जो केवल मुनाफा कमाने में रुचि रखती है, पर्यावरण संरक्षण में पैसे क्यों खर्च करेंगी? इसके लिए कैसे बाध्य किया जाए, इन बातों पर अभी चर्चा चल रही है. Mineral wealth in India is found in regions with good forest cover that are source of rivers. भारत में खनिज उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जहां जंगल अधिक है और जहां से नदियां निकलती है. They are also areas where our आदिवासी communities live और जहां अधिकांशतः हमारे आदिवासी जनजाति समूह रहते हैं. Mining destroys forest cover. अब खनन के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं. It is estimated that 186,000 hectares of forest have been destroyed by mining operations since 1981. एक आकलन के अनुसार 1981 या 1981 से अब तक 186,000 यानी 186,000 हेक्टेयर जंगल खनन के लिए कटे हैं. Washing of minerals also pollutes the local water sources. इसके अलावा खनन और खनिज की धुलाई के लिए स्थानीय जल स्रोतों का भयंकर प्रदूषण हो रहा है. Such environmental degradation threatens the livelihood of the local people.
पर्यावरण के इस तरह से खराब होने से वहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका खतरे में है। The law stipulates that mining can be undertaken only after obtaining the consent of the communities living in the area. कानून के अनुसार वहाँ रहने वाले जनजाति समुदाय की सहमति से ही खनन किया जा सकता है। But these legal provisions are not properly implemented. मगर अक्सर इस प्रावधान को सही तरीके से अमल नहीं किया जाता है। As a result, the tribal communities are dispossessed and deprived. फलस्वरूप जनजाति समुदाय संसाधन युक्त होने के बावजूद सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। You read the example of Niyamgiri. You read the example of Niyamgiri tribal of Odisha in the political science chapter. अब इस संबंध में आपने नियमगिरी का उदाहरण राजनीति शास्त्र के अध्ययन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, माइंस शुड बी एक्सप्लॉइटेड कीपिंग इन माइंड द पोस्ट क्लोजर ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि खदानों का दोहन खदान क्षेत्र के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। These include restoring the land to its pre-mining condition or reclaiming it for some other productive activity like agriculture. इसके तहत खदान भूमि को दोहन पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पादक कार्य के लिए उपयोगी बनाना, उदाहरणतः खेती इत्यादि प्रमुख लक्ष्य हैं। The first step is to restore the top soil, which is essential for reforestation once the mines are abandoned. सर्वप्रथम खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी या टॉप सॉइल की परत जो खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, वहाँ वृक्षारोपण करना होगा। Afforestation should be taken up in small plots to maintain the biomass of the area and rehabilitate the ecosystem. साथ ही क्षेत्र के जैव ईंधन या बायोमास को बनाए रखने हेतु छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाए जाए जो कि खदानी क्षेत्र की परिस्थिति के पुनर्वास के लिए उपयोगी है। Grass cover should also be provided to prevent soil erosion. और खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को हरी घास के सुरक्षात्मक कवच द्वारा बचाया जा सकता है। Hence, policies to utilize mineral resources should ensure a balance between increasing production, protecting the environment, and securing the needs of the local people. कुल मिलाकर खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फॉर यू, शुड प्राइवेट कंपनीज बी अलाउड टू माइन? यानी क्या निजी कंपनियों को उत्खनन करने देना उचित है? What are the advantages or disadvantages for society? Give your views. इससे समाज को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है, अपने विचार दे। सेकेंड क्वेश्चन, शुड फॉरेन कंपनीज बी अलाउड टू माइन इन आवर कंट्री एंड एक्सपोर्ट द मिनरल्स? What are the advantages or disadvantages for society? Give your view. पूछ रहा है कि क्या विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में उत्खनन करने और खनिज को निर्यात करने दिया जाए? इससे समाज को क्या लाभ और हानि हो सकती है, अपने विचार दे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू लिमिट द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय ओपन कास्ट माइनिंग?
यानी खनन क्षेत्र में कंपनियां खनन करके, यानी यहाँ पे ये लिखा है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू लिमिट द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय ओपन एंड माइनिंग, यानी खुली खदानों से पर्यावरण को कम नुकसान हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, माइनिंग कंपनीज abandon their mines after making a profit. What long-term impact does this have on the tribal population that has been living in the region for generations? How can this problem be resolved? यानी कि बोल रहा है खनन क्षेत्र में कंपनियां खनन करके मुनाफा कमाकर चली जाती है, इसका वहां सदियों से रहने वाले जनजाति समुदायों पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? इस समस्या का निदान किस तरह किया जा सकता है? Now, my dear students, the second topic of this day is mining process. जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्टडी यानी पढ़ना बहुत ही आसान काम है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टास्क इज लर्निंग। उसके लिए आपको एक्टिव और फोकस माइंड सेटअप के साथ में पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी हाउ टू लर्न। पढ़ाई करना बहुत आसान है लेकिन सीखना बहुत कठिन है, याद रखना। ये मेरे हर वीडियो लेसन भी आपको बताऊंगा मैं ये शब्द को। द माइनिंग प्रोसेस, खनन प्रक्रिया क्या है? द माइनिंग प्रोसेस, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI and the mining department of country or state collect information on which minerals are found in which place and also assess the size of the deposits. किन किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव या निक्षेप है, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उस देश या राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। बेस्ड ऑन दीज GSI surveys, the government auctions areas with mineral deposits. केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्टों के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमियों की नीलामी करती है। Many companies participate in the auction. नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती है। The company that wins the lease gets the right to mine the mineral deposits on that land. प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका या लीज मिलता है उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। Now some important minerals and their uses. Some important minerals and their uses. कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग। The earth contains more than 3000 minerals. विश्व में 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। All these minerals are important in our lives. और ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। In India, the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1975 classifies minerals into 4 categories. भारत में खान एवं खनिज विकास विनियम एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में बांटा गया है। एटॉमिक मिनरल्स यूरेनियम एंड थोरियम, परमाणु खनिज यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऊर्जा खनिज मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। मेजर मिनरल्स आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एक्सेट्रा। यानी धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। माइनर मिनरल्स यानी गौण या अधात्विक खनिज। माइनर मिनरल्स, minerals needed for
कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, सैंड, मैसनरी, स्टोन। यानी भवन निर्माण में कार्य में आने वाले खनिज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकर, बालू, इमारती पत्थर इत्यादि। Minerals can be divided into two categories on the basis of their properties and structure: metallic minerals and non-metallic minerals। खनिजों के गुण, धर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को दो वर्गों में बांटा जाता है: मेटालिक मिनरल्स धात्विक खनिज एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स अधात्विक खनिज। मेटालिक मिनरल्स कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। धात्विक खनिज को भी दो उपवर्गों में बांटा जाता है: दोज दैट कंटेन आयरन ओर सच एज मैग्नीज, क्रोमियम, पैराइट, टंगस्टन, निकिल एंड कोबाल्ट। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पैराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट। एंड दोज दैट डू नॉट हैव आयरन ओर सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, टिन एंड मैग्नीशियम। दूसरा, ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम। Non-metallic minerals do not have metals in them, such as limestone, mica, gypsum, etc. अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। Distribution of minerals. Now my dear students, in this video lesson, this is sufficient. We will continue in our study. Till then you revise the lesson till this time, and the next video lesson we will study about distribution of minerals. जैसे मैंने कहा, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी इंटरप्रिटेशन मिल रहा है। आप इसको पहले पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यू विल गेट ऑल द आंसर्स in the PDF form also, right? We will continue.